Dr. Sanjeev Anand has published many national and international journals, edited several books, and is now currently serving as the CVC or the coordinator of the vocational cell and public information officer of Pulhan University. We are delighted to have you amongst us, sir. I request you to kindly address the audience. At the outset, our most valued person, patron, the Women's Trust, Mrs. Bhanumati Neelkanthan, our chief guest, Honorable Member Legislative Assembly, Sri Saryu Rai ji, respected special guest, MD Tata Steel, USIL, Riduraj sir, Treasurer, respected Chairman, the Women's Board of Trustee, Srimati Lalita Chandrasekhar and Sri B. Chandrasekhar sir, Treasurer, the Women's College of Education, Sri Vivek Dharmarajan sir, and Secretary, Mrs. Sri Priya Dharmarajan, Secretary, Governing Body of DMS, Satik Singh ji, Vice Chancellor, my mentor, my first mentor of Varka Jain University, Dr. S.S. Sarji sir, and seeing our ex-dean, Humanities Kolan University, ex-principal ABM College, Dr. Mudita ma'am, my colleague, University representative, Dr. Prabhat Singh, and Principal Dr. Juhi Samarpita, Vice Principal Dr. Monica Uppal, and dignitaries sitting on the dais and off the dais, my star teachers coming from Jamshedpur University also, participants, students, a very warm and cherished good morning to you all. Johar. It is my proud privilege to extend my heartfelt greetings, my sincere gratitude to the Women's College of Education, the entire team management for putting forth their hard work, efforts in organizing such a beautiful two-day international conference. And secondly, मेरा एक बहुत ही स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई. You all are knowing, I think आप सब जानते होंगे, और मैं तो सोशल मीडिया से जाना और कंफर्म किया सतीश जी से, और ये एक बड़ा स्पेशल बधाई है डीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन को, इंटायर टीम मैनेजमेंट को, और जो ब्राइट टीचर्स, पूरे स्टूडेंट्स जो एलुमनाई हैं, कि दिस डीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन रैंक्ड 5th among 10 B.Ed colleges of India by the Higher Education Review published from Bangalore, Karnataka. Am I right, sir? So it is a very, really, it is an incredible academic journey of academic excellence and outstanding performance of Women's College of Education. Definitely, it requires a big round of applause. तो कहते हैं कि ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. Definitely, you made the path, but कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि आज जो भी हुआ हो रहा है या हो चुका है. आप जिस यात्रा पे हैं उसमें आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपका एकेडमिक्स एनवायरनमेंट, बड़ा स्प्लेंडेड एफर्ट, एवरीथिंग ये साबित करता है योर एजुकेशन इज बेस्ट, योर टीचर्स आर बेस्ट, योर टीम एफर्ट इज बेस्ट, बट
Sir, your best is yet to come. Wahaka, your best is yet to come, and I wish it remain with an insatiable hunger to attain this best always. मैडम, प्रिंसिपल मैडम ने भी कहा और हमारे माननीय विधायक जी ने भी बहुत कुछ बड़ा सारगर इतना अच्छा व्याख्यान, तो मैंने सर को कहा भी कि सर आपको तो पैनल डिस्कशन में भी होना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस पे की नोट स्पीकर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एवरीथिंग। मैडम ने कहा कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा अपने एड्रेस में कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. Definitely. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा वो सबसे सशक्त हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान शक्ति है। नॉलेज इज पावर। डेफिनेटली नॉलेज इज पावर। बट इन माई ओपिनियन सर, the execution of your knowledge is in the right direction at the right time to attain the fixed goal, that is the real power, or else it is a waste. You just look, अगर आप harnessing the power of education to embrace and adopt green initiatives, सर उसमें से आप harnessing सब हटा दें तो क्या द पावर ऑफ एजुकेशन टू एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स, ये भी हो सकता था। कहीं इसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई इसमें गलती नहीं थी, ये भी हो सकता था। द पावर ऑफ एजुकेशन टू एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स। शक्ति का क्या महत्व है वो ग्रीन इनिशिएटिव्स को गो ग्रीन होने के लिए, ये आप एजुकेशन बताएंगे। बट दैट वर्ड हार्नेसिंग इट कॉम्प्लीमेंट्स, वो कॉम्प्लीमेंट करता है एजुकेशन को, आपके ज्ञान को, कि हार्नेसिंग द पावर ऑफ एजुकेशन, उसको हम कैसे उपयोग में मैक्सिमम ले सकें। सर से मेरा, विवेक सर से वही डिस्कशन हो रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्नेसिंग। सो मेनी मीनिंग आते हैं, बट आप उसको यहाँ पे पॉजिटिव वे में लें कि उसका दोहन हम, जो मेरे पास जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, उसका दोहन हम कैसे करें जो embrace and adopt green initiatives. इसलिए एजुकेशन वो निश्चित रूप से सबसे सशक्त माध्यम है। ये न केवल व्यक्ति और समाज को आकार देता है, बल्कि उसको एक जिम्मेवार नागरिक, उसको सतर्क रहने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तय करता है कि आपको किस दिशा में जाना है और आपको अपने ज्ञान को कैसे इम्पार्ट करना है, लोगों को कैसे अवेयर करना है। सो यू कैन से, यू नो कि द बेस्ट इंटरेस्ट यू कैन गेट फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इज टू जस्ट इन्वेस्ट योर सेल्फ इन एजुकेशन, एंड द बेस्ट इंटरेस्ट इज नॉलेज, ज्ञान, एंड दिस knowledge should be acknowledged. This knowledge should be acknowledged by your ethics, by your morality, by your spirituality, by your values, ताकि एक फिक्स्ड गोल को हम प्राप्त कर सकें। वो कहते हैं कि लाइफ इज थ्रू आउट ए लर्निंग प्रोसेस, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, झूले से कब्र तक, वोम टू टोम। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो बड़ी गतिशील होती है। और DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, वो इसी और इसके पहले भी आपके संस्थान ने ट्राइबल कल्चर और सोशल मोबिलिटी पे भी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। तो ये सारी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जो प्रक्रिया है अनवरत चलती रहे। आज का यह 2 दिवसीय बौद्धिक समागम इस कारण भी प्रासंगिक है कि हम इस सम्मेलन के बहाने ये जान पाएंगे कि हाउ
education will empower us with attitude, skill, knowledge to live in such a way that is suitable for environment, society, economy, growth and all. So many learned scholars are here, keynote speakers, विद्वान लोग हैं. 2 दिनों में पेपर प्रेजेंटेशन होगा, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, सब कुछ होगा. बट मैं कुछ चंद शब्दों में इसको कंक्लूड करते हुए मतलब इस कॉन्फ्रेंस के डिस्कस को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी शुड एक्ट लाइक ए इको वॉरियर्स. वी शुड एक्ट लाइक ए इको वॉरियर्स फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर. We should take all the initiatives to adopt this green initiatives, because the world green revolution is the best solution to arrest this pollution. जब हम literally green initiatives की बात करते हैं, that is also known as go green, then we are taking some very special steps to protect this environment, the land, the water, the mountain, the forest, and the air we breathe. Green initiatives, in other words, you can say go green also. It involves implementing eco-friendly practices such as reducing of energy consumption, जैसा सर ने कहा, माननीय विधायक जी ने कहा, reducing energy consumption, minimizing waste, encouraging recycling, using of sustainable materials, and promoting, and last but not the least, promoting a culture of environmental awareness among the people and the society. So, in nutshell, we have to accept, embrace, गले लगाना पड़ेगा, हग करना पड़ेगा इस ग्रीन इनिशिएटिव्स को to see a better future. I have firm belief the collective efforts of your institution and the outcome of this conference, loaded with all thoughtful insights and brainstorming sessions, discussions, will definitely bring a meaningful progress to adopt this green initiatives. वो कहते हैं ना कि वादे वादे जायते तत्वबोधा. यह भारत की प्राचीन एवं सनातन परंपरा रही है कि हम सबकी बातों को बहुत सम्मान के साथ सुनते हैं. न केवल सुनते हैं बल्कि आदर के साथ उनमें जो भी कल्याणकारी बातें हैं उसको अंगीकृत करते हैं और एक फिर नए विचारों की निर्मिति करते हैं. और हमारे शिक्षा प्रतिष्ठानों का यही उद्देश्य भी होना चाहिए. और इसके बाद इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद इसका जो भी फलाफल होगा, जो भी निष्कर्ष निकाले होगा, वो न केवल इस DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए एक पाथेय होगा, बल्कि इस देश और इस समाज और कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा. न केवल कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, बल्कि पर्यावरण सजगता एवं एक मूल्यपरक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर साबित होगा. बट आप सबों को पार्टिसिपेंट, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द एंटायर टीम मैनेजमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि जहन में ये बात जरूर बैठा लें कि आपको इस मील के पत्थर की तरफ नोटिस नहीं करना है. बिकॉज आपको दिमाग में हमेशा यही बैठा के रखना है सर कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. आज 21वीं शताब्दी में हम लगातार भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं. जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं. ठीक उसी समय ये 2 दिवसीय सम्मेलन इस संस्थान के प्रकृति, उसका इस संस्थान का उसका प्रकृति प्रेम, शोधक नजरिया
और पर्यावरण सजगता से आम जनमानस को रूबरू कराने का ये प्रयास वाकई काबिल तारीफ है। और एक इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर है जो बड़ा मुकम्मल है इस आयोजन के लिए, कह के मैं आई विल कंक्लूड माई एड्रेस। उठो ये मंजर सबे ताब देखने के लिए, उठो ये मंजर सबे ताब देखने के लिए। सबे ताब का मंजर, सबे ताब एक उर्दू वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है दृश्यावली, ग्रीनरी। ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन जब कंक्लूड होगा तो जो समा बनेगा, जो नज़ारा होगा, दैट इज मंजर सबे ताब। उठो ये मंजर सबे ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। Thank you. Encouraging words, sir. I request Mrs. Lalita Chandrasekhar to kindly present a token of appreciation to Dr. Sanjeevan.